بھارت نے دریائے چناب میں خطرناک سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ مرالہ کے مقام پر 5,31,000 کیوسیک کا ریلا داخل۔ سیلابی پانی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ خان کی بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,13,000 کیوسیک ہے۔ قادر آباد بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسیک ہے۔ پانی چھوڑنے سے متعلق بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بھارت نے دریائے چناب میں خطرناک سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ خان کی بیراج پر پانی کا بہاؤ 4,13,000 کیوسیک ہے۔ قادر آباد بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,53,000 کیوسیک ہے۔ پانی چھوڑنے سے متعلق بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ بھارت نے دریائے چناب میں خطرناک سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ مرالہ کے مقام پر 5,31,000 کیوسیک کا ریلا داخل۔ سیلابی پانی میں مزید اضافے کا خدشہ۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ جنوبی پنجاب میں صورتحال مزید سنگین۔ ملتان کے قریب دریائے چناب میں حج محمد والا کے مقام پر روڈ کی بریچنگ کا فیصلہ آج شام تک کیا جائے گا۔ بنبوسن، جھوکوینس، سلاون، نواب گرے والا کے قریب تمام آبادیوں کا انخلا کر لیا گیا۔ دریائے چناب کے بپھرے پانی نے مظفر گڑھ کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رنگپور کے مقام پر بڑے ریلے سے 200 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ کیجیوالا میں 20 فش فارمز پانی میں بہہ گئے۔ عبدالحکیم کے قریب دریائے راوی کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ پانی ریلوے پل کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ شہادت کندلہ، موزہ باٹیاں اور ہیڈ ستنائے پانی کی زد میں ہیں۔ ضلع پہاڑی میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ بہاولپور میں ایمپریس برج پر پانی 10 فٹ تک پہنچ گیا۔ موزہ بھنجا کا حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں گھر پانی کی زد میں آ گئے۔ شریف میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ علاقے خالی کرنے کے اعلانات کرائے جا رہے ہیں۔ گجرات میں حج مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ مرالہ بیراج پر پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ سیالکوٹ میں نالا ڈیک، نالا ایک اور نالا بھنڈ میں کنگرا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ نالا پھلکو میں درمیانے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر آباد میں خانکی اور قادر آباد بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان میں حج محمد والا پل کے قریب دریائے چناب میں 5 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ بند بوسن، سلاون، نواب اور گرے والا کے قریب آبادیوں کا انخلا۔ آج شام تک سیلابی ریلے میں اضافہ ہوگا۔ پانی کی سطح دیکھنے کے بعد ہیڈ محمد والا روڈ پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی بڑی تعداد رشتہ داروں کے گھروں میں چلی گئی ہے۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا کے قریب دریائے چناب میں 5 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جبکہ صورتحال ملتان میں ہے کہ ہیڈ محمد والا کے پل کے قریب دریائے چناب میں 5 لاکھ کیوسیک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ صورتحال کیا ہے جانیں گے حامد چودھری سے۔ حامد بتائیے اس ٹائم کیا صورتحال ہے وہاں؟ جی بالکل، اس وقت میں اکبر فلڈ بند کے اوپر موجود ہوں اور یہاں بڑا سیلابی ریلا جو ہے ملتان کی حدود سے گزر رہا ہے۔ 5 لاکھ کیوسیک کا ریلا جو ہے وہ ہیڈ محمد والا کے مقام سے گزر رہا ہے اور مزید پانی آنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ریسکیو ایکٹیویٹیز کس حد تک پہنچی ہیں، لوگوں کو کس حد تک انخلا کیا گیا؟ ہمارے ساتھ ریسکیو آفیسر موجود ہیں۔ ڈاکٹر سر جی یہ بتائیے گا کہ کتنے لوگوں کو ابھی تک باہر نکالا جا چکا ہے اور ریسکیو ایکٹیویٹیز کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی یہ بڑا ریلا جو ہے ملتان کی حدود میں داخل ہو چکا ہے پانی کا، اور جو ریسکیو ایکٹیویٹیز کی جہاں تک بات ہے، ہم ارلی ایویکویشن الحمدللہ ہم کرا چکے ہیں تقریباً 100%۔ تو یہاں پہ اس وقت لوگ جو ہیں محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں، اور ریسکیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ہم پیٹرولنگ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اگر کہیں پہ کسی کو ضرورت ہے کسی قسم کی ریسکیو ایکٹیویٹیز کی یا کوئی میڈیکل ایڈ چاہیے ان کو، تو ہمارے جو جوان ہیں 24/7 یہاں پہ موجود ہیں، وہ یہاں پہ ان کو پرووائڈ بھی کر رہے ہیں۔ ہماری بوٹس یہاں پہ موجود ہیں، وہ پیٹرول بھی کر رہی ہیں۔ ریسکیو جو ہے ہر وقت تیار ہے اور لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کر رہا ہے۔ یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے تھوڑی دیر بعد وزٹ کرنا ہے۔ پہلے وہ یہاں آئیں گی، ان کو یہاں ہیڈ محمد والا کے مقام پر ہیڈ محمد والا روڈ اور باقی جو ہے پانی کی صورتحال کے حوالے سے بریف کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے مریم نواز جو ہے وہ قاسم بیلا لگڑیال جائیں گی اور وہاں جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کریں گی اور وہاں لوگوں کے حالات پوچھیں گی۔ جی ٹھیک ہے حامد، اپڈیٹس کرنے کے لیے شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملتان میں ہیڈ محمد والا پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اکبر فلڈ بند کا دورہ، مریم نواز بریچنگ پوائنٹ کا بھی دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملتان میں حج محمد والا پہنچ چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اکبر فلڈ بند کا دورہ کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بریچنگ پوائنٹ کا بھی دورہ کریں گی۔
दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक, गुड्डू बैराज पर 3,70,000 क्यूसेक है, कोटरी बैराज पर 2,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। इसी पर बात करते हैं सखर में मौजूद ब्यूरो चीफ शहजाद तबानी से। शहजाद, बताइए क्या सूरत हाल बताई जा रही? जी बिल्कुल, देखिए सैलाबी सूरत हाल दरिया सिंध के अंदर बरकरार है। गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटरी बैराज के ऊपर जो है वो सैलाब मौजूद है। गुड्डू बैराज के ऊपर 3,70,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सखर बैराज के ऊपर पानी जो है वो 3 लाख क्यूसेक हो गया है। 24 घंटों के दौरान 20,000 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ा है और कोटरी बैराज के ऊपर जो है 2,60,000 क्यूसेक पानी की जो है वो आमद रिकॉर्ड की गई है। कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक ये पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। जो सखर बैराज की अपग्रेडेशन है उसके अंदर नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया है, ऐसा सुप्रीडेंट ने जो है वो खत लिखा है प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं उनको, और वो आज इसी सखर बैराज पर आ रहे हैं, मुआयना करेंगे, ब्रीफिंग लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद जो है एक अहम मीडिया टॉक करेंगे और उसके अंदर वो बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने सैलाब की तबाही से बचने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज के अतराफ में जो दरिया सिंध का हिस्सा है, जो 15 अजला हैं, सिंध के अहम अजला हैं जो दरिया सिंध के अतराफ में, उनके जो हिफाजती बंद हैं उनकी सूरत हाल किस हद तक बेहतर हुई है, और जो कैंप्स लगाए गए हैं हुकूमत की जानिब से उन कैंप्स की क्या सूरत हाल है, ये सब तमाम तर चीज़ें जो है वो आज गवर्नर सिंह बताएंगे। जी, दूसरी जंग अजीम में जापान को शिकस्त देने की सालगिरह चीन ने अपनी जदीद तरीन अस्करी सलाहियत दुनिया को दिखा दी। चीन की कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार परेड, दिफाई साजो सामान की भरपूर नुमाइश की गई। परेड ने दिल मोह लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 सरबराहान मुमलिकत की तकरीब में शिरकत। रूसी सदर पुतिन, शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन भी मौजूद। तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग की आलमी सानेहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। कहा, इंसानियत को जंग या अमन में से किसी एक का इंतखाब करना है। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। इंसाफ और मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। दूसरी जंग अजीम में जापान को शिकस्त देने की सालगिरह। हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे, जबरदस्त टैंक, एक से बढ़कर एक ड्रोन। चीन ने अपनी जदीद तरीन अस्करी सलाहियत दुनिया को दिखा दी। दूसरी जंग अजीम में जापान की शिकस्त की सालगिरह पर बीजिंग के तारीखी तियानमेन स्क्वायर पर कौमी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड हुई। चीन के सदर शी जिनपिंग का दुनिया को मजबूत पैगाम। तकरीब से खिताब में कहा, इंसाफ और मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। इंसानियत को जंग या अमन में से एक का इंतखाब करना है। चीनी सदर ने वाज़ेह किया, हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसी पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। चीनी फौज काबिल भरोसा और अवाम अमन के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था, चीन अपने माजी की मुसीबत कभी किसी पर मुसल्लत नहीं करेगा। जापान ने जारियत के खिलाफ चीनी अवाम की भरपूर मुज़ाहमत की यादगारी तकरीब में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर पेज़ेश्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। जापान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीन के रिटायर्ड फौजी भी तकरीब में शरीक हुए। परेड में चीन ने जदीद तरीन साजो सामान पूरी आबोताब के साथ दुनिया को दिखाया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, 5th जनरेशन जंगी तैयारे, जदीद ड्रोन और टैंक शामिल थे। नुमाइश में तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बरे आज़मी न्यूक्लियर हथियार भी पेश किए गए। ये हथियार दुनिया में कहीं भी हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। इस मौके पर चीन के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। मियां आमिर महमूद कहते हैं, मुल्क की तरक्की अवामी हकूक और मौसर इंतजाम पर मुनहसर है। मजबूत और पायदार रियासत के लिए मसावात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम लाजमी है। सूबे बढ़ने से गवर्नेंस बेहतर होगी और अखराजात कम होंगे। हमने अपने आप को उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया जैसे हमें करना चाहिए था। उसका नतीजा क्या निकला? हम अपनी बदइंतज़ामी की वजह से एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं जो कोई ज़्यादा काबिल फ़ख्र मुकाम नहीं है।
मियां आमिर महमूद का पंजाब यूनिवर्सिटी में 2030 का पाकिस्तान चैलेंज, इम्कानात और नई राहें के उन्वान से सेमिनार से खिताब। बलूचिस्तान सिर्फ 1.1 मिलियन का सूबा है। अगर तभी से हम उसे पकड़ लेते और उसकी वेलफेयर के लिए काम करते तो शायद आज ये दिन हम ना देख रहे होते। जब मुल्क बहुत बड़े होते हैं उन्हें तकसीम किया जाता है इंतजामी लिहाज से ताकि मुल्क के वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आवाम तक पहुँचे। मियां आमिर ने मजीद कहा, मजबूत और पायदार रियासत के लिए आवामी हुकूक, मसावात और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम लाजमी है। जब एक बेटी की किस्मत का सौदा होता है तो मोहब्बत और गुनाह, कुर्बानी और खुद गर्जी के दरमियान सरहदें मिट जाती हैं। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट नया ड्रामा सौदा नाजरीन जल्द स्क्रीन पर देख सकेंगे। मुबारक अमजद, बेटी हुई है। एक बेटी रहमत बनकर आई थी मगर किस्मत ने उसे सौदा बना दिया। जहां माँ का प्यार कुर्बानी बन जाए, बाप का लालच रिश्तों का खून देकर और मोहब्बत सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाए। 2 महीने तो तुझे दे दिए मैंने। हाँ तो मैं लालची आदमी हूँ, तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो सवाल उठाता है, गुनाह या मोहब्बत, कुर्बानी या खुद गर्जी। पूरे 50 लाख लूंगा मैं। अली रहमान, जुबाब राना, नौशीन अहमद और पारस मसरूर अपनी बेमिसाल अदाकारी के साथ जलवागर हो रहे हैं। ड्रामा सौदा जल्द आ रहा है सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की फुल कोर्ट मीटिंग का एजेंडा सामने आ गया। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट सर्विस रूल्स का मामला फुल कोर्ट एजेंडे में शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स भी एजेंडे में शामिल। हाई कोर्ट की इमारत की तामीर में मसाइल को एजेंडे में रखा गया। फैमिली जजेस के इख्तियारात का मामला भी एजेंडे का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की फुल कोर्ट मीटिंग का एजेंडा सामने आ गया। जराये के मुताबिक हाई कोर्ट सर्विस रूल्स का मामला फुल कोर्ट एजेंडे में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले चीफ जस्टिस को खत जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज ने लिखे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल उठाया, क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समझते हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले अदलिया को आज़ाद इदारा बनाने की कोशिश की? जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रोस्टर की तैयारी, केसेस फिक्स में शफाफियत की कमी है। क्या जजेस और चीफ जस्टिस को याद नहीं रखना चाहिए वो किंग नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं? बराह रास्त ये चलेंगे। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कराची में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 केसेस, मैं 23 शायद कह गया, 24 केसेस हैं, मैं करेक्ट करता हूं, 24 केसेस हैं पाकिस्तान में टोटल। 24 बच्चों को पोलियो के ये मूजी मर्द लाक हो गया, माजूर हो गए 24 बच्चे पूरे पाकिस्तान में। और जो खैबर पख्तूनख्वा का हमारा इलाका है, जो सूबा है, वहां पर 16 केसेस हैं, वहां पर 16 केसेस हैं। उस 16 में से 13 केसेस साउथ केपी के, साउथ खैबर पख्तूनख्वा के, साउथ के, जहां पर पिछले 4 से 5 सालों से पोलियो की कैंपेन नहीं हुई है। तो हमारा केस साबित हो रहा है कि जहां से 4-5 सालों से साउथ के, जहां पर पिछले 4 से 5 सालों से पोलियो की कैंपेन नहीं हुई है, तो हमारा केस साबित हो रहा है कि जहां से 4-5 सालों से पोलियो कैंपेन नहीं हुआ, तो 16 में से 13 केसेस वहां से हैं। और आने के माहिरीन कहते हैं कि और आने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है जहां पर बच्चों को ये कतरे नहीं पिलाई जा रहे, वहां से केसेस आ रहे हैं। अब ये 23 क्यों है, 24 क्यों है, 24,000 क्यों नहीं है? ये 24,000 केसेस साल में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में 100। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।